Hello everyone and welcome to this online series on chemical reactions and equations. This topic is extremely important for all the students of class 10th and forms the base for higher classes. I have tried to make this topic as interesting as I could. Hopefully, you will enjoy learning along with me. So without wasting much time, let's start with the topic chemical reactions and equations. This chapter majorly focuses on different types of reactions which we encounter in chemistry. So we will look at the broad classification of reactions and then look at each of these classes in greater detail. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शंस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और उसके बाद ईच ग्रुप को वी विल लुक इन डिटेल. Now all chemical reactions can be broadly classified into 4 types. Chemical reactions को हम 4 broad classes में classify कर सकते हैं, and these being, first is combination reaction, second decomposition reaction, third displacement reaction, and finally double displacement reaction. So there are 4 classes of reactions: combination, decomposition, displacement, and double displacement. Though there are other criteria for classifying reactions. For example, one can classify reactions on the basis of energy, कि किसी रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसके बेसिस पर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. सिमिलरली there are other ways of classifying reactions, but initially to start off with हम लोग इस क्लासिफिकेशन पर फोकस करेंगे and we will look into these 4 types which are combination, decomposition, displacement and double displacement reaction. So we will first start with combination reactions. Okay? So what are combination reactions? Now reactions in which 2 or more compounds react to form a single compound are called combination reaction. यानी इन reactions में 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे. यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, जो चीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं, दे विल बी मोर देन 1, और जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है दैट विल ऑलवेज बी 1. यानी मेनी रिएक्टेंट्स जॉइन टुगेदर टू गिव यू वन सिंगल प्रोडक्ट, and these kind of reactions are called combination reactions. So I think this would be very clear from this brief animation. Okay? So we can depict a generalized combination reaction as shown below. यहां पर 2 रिएक्टेंट हैं A और B, और वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं AB. तो मल्टीपल रिएक्टेंट्स गिविंग यू वन सिंगल प्रोडक्ट. सो दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो क्लियर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? मल्टीपल रिएक्टेंट गिविंग यू वन सिंगल प्रोडक्ट, तो ये हो जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ combination reaction. Now the most important example of combination reaction is that of burning of magnesium ribbon. Magnesium ribbon burns with a white dazzling light to form a white powder of magnesium oxide. Magnesium ribbon एक सिल्वर कलर की रिबन होती है, जिसको जब हम हीट करते हैं या फ्लेम में बर्न करते हैं तो इट विल स्टार्ट बर्निंग विद अ white dazzling light and it will form a white powder of magnesium oxide.
दिवाली पे आप सबने फुलझड़ी जलाई होगी, राइट? तो फुलझड़ी या एनी क्रैकर विच गिव्स यू अ व्हाइट लाइट इज most probably made up of magnesium or contains magnesium along with other chemicals. So magnesium ribbon burns with a white dazzling light to form a white powder of magnesium oxide. Okay? अब हम देखते हैं इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन क्या होगी। जब भी कोई चीज बर्न होती है एयर के अंदर, सो बेसिकली द रिएक्शन जो हो रहा है दैट इज बिटवीन दैट एलिमेंट और कंपाउंड एंड ऑक्सीजन. So this is how the chemical reaction looks like. Magnesium combines with oxygen to give you magnesium oxide and this is a white colored powder. जलने पर जो राख छूट जाती है तो ये एक तरीके से राख है और इस राख का कलर व्हाइट होता है. Okay? Now one important thing which you should know or which you should remember as far as burning of magnesium ribbon is concerned कि magnesium is a very reactive metal, बहुत ज़्यादा reactive है, बहुत easily react करेगा. So whenever you expose magnesium to air, magnesium को आप खुले में रख दो तो it will react with oxygen present in the air and form a white coating of magnesium oxide on its surface. So before we burn magnesium ribbon, it should be cleaned thoroughly with a sandpaper. एक sandpaper से इसको हमें अच्छे से साफ करना होगा. अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे तो magnesium ribbon burn होने में दिक्कत देगी. It will be difficult to burn the magnesium ribbon. So magnesium ribbon should be cleaned before being burned, as on being exposed to air it gets a coating of magnesium oxide. और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है तो कोटिंग भी व्हाइट कलर की होगी. मैग्नीशियम रिबन शाइनी व्हाइट कलर का होता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग होगी. तो एट टाइम्स यू वॉन्ट इवन रियलाइज कि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग आ गई है. दो इन अपीयरेंस वो डल हो जाएगा, उसका जो लस्टर होगा वो खत्म होना शुरू हो जाएगा. ओके, so remember this is an important reaction from the perspective of board examination. दोनों तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. Explain the burning of magnesium, or what happens when magnesium is burnt in air, or why magnesium ribbon should be cleaned before being burnt in air. So this is a case of combination reaction, and it's an important reaction from the perspective of board examination. तो क्लियर है आप सबको? रिएक्शन सिंपल है. ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके, नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एक्चुअली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म करेगा. अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, टू और मोर कंपाउंड्स वर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. और डीकंपोजिशन में उल्टा हो रहा है, वन सिंगल प्रोडक्ट breaks down to give you two or more substances. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली लाइक दिस. हियर AB इज अ कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे रिएक्टेंट्स हैं, एक ही रिएक्टेंट है AB. नाउ AB ब्रेक्स डाउन टू गिव यू A एंड B. तो एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर हैज गिवन मी टू कंपाउंड्स. सो इट्स अ केस ऑफ अ डीकंपोजिशन रिएक्शन. सिंपल वर्ड, सिंपल मीनिंग भी अगर देखो, लिटरल मीनिंग डीकंपोजिशन का, डीकंपोजिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन. तो वो रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देंगे इज कॉल्ड डीकंपोजिशन
reaction. So clear a decomposition reaction? Combination का opposite decomposition. Okay. Now, अगर हम किसी भी कंपाउंड के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम तोड़ रहे हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए, राइट? Therefore, all decomposition reaction requires energy, and this energy can be provided in one or the other form, like heat. Heat is a form of energy, or you can provide it in terms of light, or you can provide it as electricity. So all decomposition reaction requires energy in one or the other form to break the existing bonds in the compound. हर decomposition reaction को energy की requirement है, and the reactions which require energy या which absorbs energy are called endothermic reaction. यानी all decomposition reactions are endothermic reaction. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एट अ लेटर स्टेज. एज ऑफ नाउ रिमेंबर, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन विच रिक्वायर्स और विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी. ठीक है, तो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और ये एनर्जी हम हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं. ठीक, सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम ये एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. Thermal decomposition, as the word suggests, it is carried out by heat. Electrolytic decomposition, as is obvious from the name, it is carried out by electricity. And photolytic, photo का मतलब होता है light, photosynthesis, synthesis of food using light. So photo means light, so decomposition reaction carried out with the help of light energy is called photolytic decomposition. So 3 तरह के decomposition reaction हुए जो heat से carried out हुए: thermal decomposition, reactions which require electricity for decomposition, electrolytic decomposition, और वो reaction which require light for decomposition are called photolytic decomposition. अब हम इन तीनों categories of decomposition reaction को डिटेल्स में देखेंगे, and we will start off with thermal decomposition. Okay, so let's look at what thermal decomposition is. Now, decomposition reaction carried out with the help of heat is called thermal decomposition. ठीक है, याद रखो, decomposition reaction carried out by heat is called thermal decomposition. Example, main examples जो आप 10th क्लास में you are expected to know, और इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो. Not the specific reaction but the broad category of reaction, because these will be used even in higher classes like 11th and 12th. तो इस टॉपिक में हम 3 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे: डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स. कार्बोनेट ग्रुप सबको पता है, CO3 2-, जिस भी कंपाउंड में CO3 2- आयन आ रहा है दैट इज अ कार्बोनेट. और अगर ये आयन किसी मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे कैल्शियम के साथ, तो क्या बन जाएगा? मेटल कार्बोनेट. फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, these are all metallic carbonate. Na2CO3 sodium carbonate. Next we will study decomposition of metal nitrates. तो यहां पर मेटल और
नाइट्रेट आयंस कंबाइन होंगे, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, lead nitrate PbNO3 whole twice, then you have sodium nitrate NaNO3. So nitrate ion which is NO3 minus and metal combined to give you metal nitrates. And finally we will look at decomposition of sulfates. इसमें मेटल और सल्फेट आयन होंगे, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, फेरस सल्फेट FeSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो ये सारे मेटेलिक सल्फेट्स हैं। तो हम 3 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन देखेंगे, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल नाइट्रेट्स और मेटल सल्फेट्स, और तीनों का एक एक एग्जाम्पल वी विल स्टडी। बट टू गिव यू अ ब्रॉड आइडिया, अगर किसी भी कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, और जब मैं बात कर रहा हूं कार्बोनेट्स को तो मतलब मैं थर्मली अनस्टेबल कार्बोनेट्स की बात कर रहा हूं जो हीट से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अगर मैं किसी थर्मली अनस्टेबल कार्बोनेट को हीट करता हूं तो जो रिएक्शन होगा उसमें हमेशा 2 कंपाउंड्स बनेंगे, एक होगा मेटल का ऑक्साइड और दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 2 कंपाउंड बनेंगे, एक मेटल का ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस, इसमें ना कोई कलर है ना कोई स्मेल है। सो इंपॉर्टेंट है, कोई भी कार्बोनेट आपको दिया हो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सबका रिएक्शन सिमिलर होगा, एक ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जब डिकम्पोज होते हैं तो 3 कंपाउंड बनते हैं, एक ऑक्साइड जो फर्स्ट केस में भी बना था, सेकेंड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज ब्राउन इन कलर, दैट्स व्हाई आई हैव शोन इट इन अ ब्राउन बॉक्स। So brown colored nitrogen dioxide is given out on decomposition of nitrates. And finally oxygen. तो 3 कंपाउंड बनेंगे, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर बट ओडरलेस, एंड ऑक्सीजन। तो कोई भी नाइट्रेट दिया आपके एग्जाम में, सिल्वर नाइट्रेट दे रखा हो, लेड नाइट्रेट दे रखा हो, कॉपर नाइट्रेट दे रखा हो, इट विल फॉलो सिमिलर पैटर्न ऑफ रिएक्शन। And finally sulfates. Sulfates also break down to give you oxide of the metal, and generally sulfur dioxide and sulfur trioxide are the gases which are evolved. कौन सी गैसेस निकलती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये गैसेस भी कलरलेस हैं, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस भी कलरलेस हैं बट ओडरलेस नहीं है, दे हैव अ वेरी पंजेंट स्मेल, इरिटेटिंग सी स्मेल है ऑफ बर्निंग सल्फर, ऑफ अ बर्न्ड सल्फर। सो रिमेंबर द ब्रॉड डिस्क्रिप्शन और द ब्रॉड मैकेनिज्म्स ऑफ दिस रिएक्शंस। कार्बोनेट्स डिकम्पोजिशन पे देंगे ऑक्साइड एंड कलरलेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स ऑन डिकम्पोजिशन देंगे ऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और सल्फेट्स देंगे ऑक्साइड and sulfur dioxide and sulfur trioxide which have a smell of burning sulfur. क्लियर है? तो अब हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट और मेटल सल्फेट्स का। Now the first example for thermal decomposition is that of decomposition of calcium carbonate. Calcium carbonate chemical formula CaCO3 and commonly it is known as limestone. जो मार्बल का पत्थर आपके घरों में यूज होता है, that is made up of calcium carbonate or limestone. Now for most of you this would be the first time that you are doing chemical reactions. Now trick for learning chemical reaction, या मतलब आपको chemical reaction खुद से लिखना आ जाए, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस को
अच्छे से समझ लें। अब जैसे लास्ट स्लाइड में हमने बोला कि मेटेलिक कार्बोनेट हीट करने पे हमें क्या देंगे, मेटेलिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कंपाउंड में मेटल कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, यानी कैल्शियम CaO। फॉर्मूला लिखना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो CaO वैलेंसीज हमने 2 क्रॉस करी तो फॉर्मूला बन गया CaO, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, राइट। तो क्या हो रहा है, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। अब ये जो रिएक्शन है, अगर हमें ब्रॉड कैटेगरी का रिएक्शन, कार्बोनेट्स का रिएक्शन पता होता, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो मैं यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट देता या मैग्नीशियम कार्बोनेट देता या जिंक कार्बोनेट देता, रिएक्शन वुड हैव बीन सिमिलर। क्या चीज चेंज हो जाती, ऑक्साइड। इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आई वुड हैव गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड और व्हाटएवर, बट द ब्रॉड कैटेगरी और द ब्रॉड structure of the reaction remains the same. So calcium carbonate on heating decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide gas is evolved. ये जो छोटा सा ट्राइंगल बनाया है हमने एरो के ऊपर, this basically stands for heating. इसका मतलब है this reaction happens only on heating. Okay? And this symbol, the upward arrow, this denotes a gas. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो उसके आगे हम लोग एक अपवर्ड एरो लगा दिया। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड एंड आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स, सो आई विल नॉट बोर यू अगेन बाय रिपीटिंग द सेम थिंग। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का ऑफ अ मेटेलिक कार्बोनेट। नाउ लेट्स लुक एट द डिकम्पोजिशन ऑफ अ metallic nitrate, and we will take an example of lead nitrate. Now, we have already learned that nitrates on heating decomposes to give oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. So, lead nitrate will also follow the similar structure. So, that's exactly the case. When lead nitrate is heated, it decomposes to give lead oxide, and brown fumes of nitrogen dioxide are evolved along with oxygen gas. Okay? Nitrogen dioxide, as we learned, is brown in color. And the overall reaction can be written as lead nitrate on heating gives 2 molecules of lead oxide, 4 molecules of nitrogen dioxide and 1 molecule of oxygen gas. Now again the upward arrows shows that these are gases, and this reaction takes place on strong heating. Now in exam, if instead of lead nitrate you are given silver nitrate or let's say copper nitrate, it will follow the same structure. Okay, is this clear? Now again, we have already learned this thing, so I won't repeat it. Now the third example which we will look at of thermal decomposition is that of a metallic sulfate, and we will take the case of ferrous sulfate. Now ferrous sulfate crystals are green in color and they have something called water of crystallization attached to it. Now what do we mean by water of crystallization? बेसिकली ये जो फेरस सल्फेट सॉल्ट होता है ये थोड़ा मॉइस्ट फॉर्म में होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम किसी ऐसे क्रिस्टल को हीट करते हैं जिसके अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो दे विल वेपराइज फर्स्ट। द सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स व्हिच आर ग्रीन इन कलर व्हेन हीटेड फर्स्ट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो वेपराइज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच फेरस सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स
white in color. तो कलर चेंज क्या हुआ? फ्रॉम ग्रीन टू white as water of crystallizations are lost. On further heating, it decomposes to give ferric oxide along with evolution of sulfur dioxide and sulfur trioxide gases. And as we learnt earlier in the lecture, sulfur dioxide and sulfur trioxide gases have the smell of burnt sulfur or burning sulfur. So this is how the decomposition of ferrous sulfate looks like. And in terms of chemical equation, this is how it will look like. So this is the green colored ferrous sulfate with water of crystallization attached to it, and this is brown colored ferric oxide which is formed on complete decomposition. Again, the upward arrows represent the gases which are getting released. Now one thing which you should be very clear, जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मेनली क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है. जैसे इस क्वेश्चन को टिपिकली किस फॉर्म में पूछेंगे? अ सब्सटेंस ए ऑन हीटिंग गिव्स अ रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस सी एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज obtained. Identify A and B and write down the chemical equation. तो जैसे ही ये क्वेश्चन बोला और जहां पर आपको बोला स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, तो आपको पता सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है. और इनिशियल में बोला कि डिकम्पोजिशन पर रेड कलर का सब्सटेंस ऑब्टेन होता है. तो किस सब्सटेंस को हम हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिले? ऑब्वियसली सल्फेट को. और रेडिश ब्राउन कलर किस केस में ऑब्टेन होता है? फेरिक ऑक्साइड का. तो ओरिजिनल कंपाउंड क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट. जो ऑक्साइड बना वो फेरिक ऑक्साइड, और जो गैसेस निकली वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को पूरी तरीके से समझना होगा और उसको याद रखना होगा. ये किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट. तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया. Now we will look at photolytic decomposition, which is decomposition carried out in presence of light. So decomposition carried out with the help of light is called photolytic decomposition. And the best example is that of decomposition of silver chloride or silver bromide. When silver chloride or silver bromide are exposed to light, they turn gray as they decompose to give silver. सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो दे टर्न ग्रे इन कलर. ये ग्रे कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, राइट? सो दिस इज हाउ the whole reaction looks like. 2AgCl will give you Ag plus chlorine, and in case it's bromine, silver bromide, you will get bromine vapors instead of chlorine, right? And this reaction was of particular importance till a few years back when digital photography hadn't arrived in a big way. तो जो हमारी नॉर्मल फोटोग्राफी होती थी पहले, उसके अंदर जो फोटोग्राफिक फिल्म्स बनती थी उसके अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन इन्वॉल्व रहता था. सो दिस इज द ओनली फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच यू नीड टू रिमेंबर. दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड टू गिव यू सिल्वर. ओके, नाउ इफ यू गो टू योर लैब, you should ask your teacher to show you the bottle of silver nitrate. लैब में जाकर सिल्वर नाइट्रेट की बॉटल को देखो एंड यू विल रियलाइज कि बाकी सारी बॉटल्स ट्रांसपेरेंट हैं, बट सिल्वर नाइट्रेट की जो बॉटल है दैट इज डार्क इन कलर. सो व्हाई इज सिल्वर नाइट्रेट स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? अगेन रीजन बीइंग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट पर अगर लाइट पड़ती है तो इट विल डिकम्पोज टू गिव सिल्वर
and therefore to prevent decomposition dark colored bottles are used. डार्क कलर बॉटल्स क्या करेंगी, सनलाइट को ब्लॉक कर देंगी, और सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं होगा. So therefore silver nitrate is stored in dark colored bottles because on exposure to light it decomposes to give silver, and dark colored bottles prevent exposure to sunlight. Clear hai? Okay, so now we have completed thermal decomposition and photolytic decomposition. So now it is time to look at electrolytic decomposition. So decomposition carried out by light, decomposition carried out with the help of electricity, is called इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, तो हमने हीट देख लिया, हमने लाइट देख लिया. नाउ वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज दैट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टू गिव यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नॉर्मली वाटर डिकम्पोज होता है क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में? अगर नॉर्मल कंडीशन में होता तो हमें पानी पीने को नहीं मिलता, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को ही सूंघना पड़ता. तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल कंडीशंस में वाटर डिकम्पोज नहीं होता है. बट अगर हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट विल डिकम्पोज टू गिव यू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज पर फॉलोइंग इक्वेशन. 2 मॉलिक्यूल वाटर के आपको 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के देंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के. ये रिएक्शन कब हो रहा है? ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर. नॉर्मल केस में नहीं हो रहा है. अगर होता तो हमारी जिंदगी में पानी नाम की चीज ही नहीं बचती, सब कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका होता. नाउ जो वॉल्यूम मिल रहा है मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आई विल फाइंड दैट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम मिल रहा है मेरे को वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल है. डबल क्यों है? बिकॉज इफ यू लुक एट द इक्वेशन, 1 molecule of water on decomposition gives double the volume of hydrogen as compared to oxygen. जैसे इक्वेशन में 2 मॉलिक्यूल वाटर के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दे रहे हैं पर 1 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दे रहा है. तो क्लियरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 2:1 का रिलेशन है. और आप आगे पढ़ोगे कि गैसेस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड. तो जो हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी दैट विल बी डबल द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस. क्लियर? ओके, तो नाउ वी नो कि ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वी आर गोइंग टू गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1. बट हाउ इज दिस रिएक्शन कैरिड आउट? क्या हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का वायर डाल देंगे? नहीं. So electrolytic decomposition is carried out in a special device called electrolytic cell. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को मान सकते हो ब्लॉक ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस. 2 इलेक्ट्रोड्स हम डिप करते हैं एक पर्टिकुलर या किसी सूटेबल सॉल्वेंट में. बेसिकली सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट वाला सब्सटेंस होगा जिसको हमें डिकम्पोज करना है. राइट? तो अगर हम वाटर के डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम एक बीकर के अंदर वाटर लेंगे और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को डिप कर देंगे. अब इन 2 इलेक्ट्रोड को हम किसी भी बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. राइट? बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से. जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं एनोड. क्या बोलेंगे? एनोड. और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं कैथोड. ओके, तो नाउ लुक एट दिस डायग्राम. तो इसमें एक बीकर लिया हुआ है मैंने, और बीकर के अंदर ये जो आप देख रहे हो
ये जो रॉड देख रहे हो, दीज आर बेसिकली योर इलेक्ट्रोड्स एंड हियर द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, जो कि एक कार्बन का फॉर्म है। सो एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर है और मैंने दो इलेक्ट्रोड जो कि ग्रेफाइट के बने हैं लिए, और इन दो इलेक्ट्रोड को कनेक्टिंग वायर की हेल्प से मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। राइट? ये जो टर्मिनल है इसको मैंने कनेक्ट किया, इस इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ये बन गया आपका कैथोड, और इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये बन गया आपका एनोड। जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वाटर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस। ये एनोड है, इस पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। अब अगर यहां पर वॉल्यूम देखो, ये ऊपर का जो खाली वॉल्यूम है ये ज़्यादा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है इसके। वाई? क्योंकि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो डबल होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से। सो दिस इज द सेटअप इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, एंड ऑन पासिंग करंट chemical reaction takes place and water decomposes to give you hydrogen and oxygen. Okay? So this is what we saw. At cathode, hydrogen gas is liberated and at anode, oxygen gas is liberated. और रिएक्शन जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, अगेन जो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं मेरे को हाइड्रोजन के, दोज आर डबल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होगा। तो क्लियर है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है, बिकॉज अगर मैं बाकी के रिएक्शंस भी लूंगा तो इट काइंड ऑफ विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड। तो थोड़ा स्लोली चलेंगे और इस तरीके से चलेंगे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो इन टुडेज क्लास वी लुक्ड एट टू क्लासेस ऑफ रिएक्शन विच आर कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में हमने तीनों टाइप्स देख लिए: थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट; photolytic decomposition, reaction carried out by light; and electrolytic decomposition, that is reaction carried out by electricity. Hopefully you enjoyed this lecture, you found it interesting and exciting. So I will be back with you with remaining types of chemical reaction. Till then, enjoy yourself, keep studying and remain safe.